بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الفابیٹ کی پہچان۔ انگریزی میں حروف کو لیٹر اور حروف تہجی کو الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ الفابیٹ دو طرح سے لکھے جاتے ہیں: کیپٹل لیٹرز بڑے حروف، اسمال لیٹرز چھوٹے حروف۔ کیپٹل لیٹرز درج ذیل ہیں: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ، اور اسمال لیٹرز درج ذیل ہیں، انہیں کو اسمال اس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ اس کو 2-4 دفعہ پریکٹس کی جائے تو وہ اسی طرح سے ہی لکھا جا سکتا ہے ایزیلی۔ کیپٹل اور اسمال لیٹر کے استعمال کے قاعدے۔ انگریزی کے ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے، جیسے دس از اے بک، دس از اے کاؤ۔ انگریزی نظم پوئم کے ہر مصرعے کا پہلا حرف کیپٹل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا خاص نام معرفہ کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے، جیسے مولانا قاسم نانوتوی، ڈاکٹر خالد حسن۔ شارٹ فارم مختصرات کے تمام حرفوں کو کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، جیسے DU کو دہلی یونیورسٹی، JMI یا جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ حرف جب میں کے معنی میں استعمال ہو تو خواہ شروع میں آئے یا بیچ میں، ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے، جیسے ڈونٹ، آئی گو۔ اس کے علاوہ باقی تمام اسمال لیٹرز میں لکھے جاتے ہیں۔ ایکسرسائز مشق، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو خود کرنی ہے۔ دوسرا سبق، لیٹرز کی تقسیم۔ تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں: واول یعنی حروف علت، کانسوننٹ یعنی حروف صحیح۔ انگریزی میں واولز اردو میں زبر زیر پیش کی طرح کام کرتا ہے۔ انگریزی کا کوئی بھی لفظ اس کے بغیر نہیں بنتا۔ واولز 5 ہیں، یعنی A, E, I, O, U۔ باقی تمام حروف کانسوننٹ کہلاتے ہیں۔ واولز اور کانسوننٹ کے استعمال کے قاعدے۔ جس لفظ کا پہلا حرف واول میں سے کوئی ایک ہو اور اس کا تلفظ بھی واول کی ہی آواز سے ہو تو اس سے پہلے ایک کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے این ایلیفینٹ، این ایپل، این اوکس، انک پاٹ etc۔ جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ ہو اور اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ کی آواز سے ہو تو اس سے پہلے کوئی ایک یا کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایک کتاب، اے بک، اے برڈ۔ جس لفظ کی شروعات تو کانسوننٹ سے ہو لیکن آواز واول کی آئے تو اس میں ایک کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ این آرٹسٹ۔ اب این جو ہے وہ اے سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس میں آواز واول کی آ رہی ہے، این آور، تو وہ آور۔ آنیسٹ ایچ سے شروع ہو رہا ہے لیکن آواز اس میں واول کانسوننٹ کی ہوتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ این یوز ہوتا ہے۔ جس لفظ کی شروعات تو واول سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی ہے تو اس میں ایک کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے آ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یوزفل۔ یوزفل جو ہے وہ یو واول ہوتا ہے لیکن اس میں کانسوننٹ کی آواز آتی ہے، یو، مطلب AEIOU والے نا، یو تو ہے کانسوننٹ ہوتے ہیں لیکن ساؤنڈ اس میں یو یہ کا آتا ہے، جس میں اے کا ساؤنڈ آتا ہے وہ والے الفاظ جو ہیں وہ کانسوننٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں اور وہ واول ساؤنڈ کے لاتے ہیں اور ان کے ساتھ این یوز ہوتے ہیں، جیسے آئی یونیورسٹی۔ اب یوز دیکھا جائے تو وہ تو ہے تو یونیورسٹی کا یو واول الفاظ میں سے آتا ہے لیکن چونکہ واول ساؤنڈ نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ این نہیں لگتا، آ لگتا ہے۔ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے۔ انگلش پروننسیشن، انگریزی تلفظ۔ انگریزی زبان سیکھنے کے دوران ایک مشکل مرحلہ الفاظ کا صحیح پروننسیشن بھی ہے، یعنی تلفظ کا آتا ہے۔ ذیل کے سطروں میں اسی کے تعلق کچھ قواعد لکھے جا رہے ہیں جن کی روشنی میں صحیح تلفظ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے واولز کے تلفظ کی جانکاری لیتے ہیں، پھر کانسوننٹ کے تلفظ کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ پروننسیشن آف واولز، حروف علت کا تلفظ۔ اردو میں سے پروننسیشن آف واولز کو اردو میں علت کہتے ہیں، حروف علت۔ تلفظ پروننسیشن کا کہتے ہیں۔ اے کی آواز کبھی اے آتی ہے اور کبھی آ آتی ہے، تو وہ کیوں آتی ہے، کب آتی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ ایٹ، اگر ایٹ ہے تو وہ اے کی آواز آئے گی، این، لیڈ، مین۔ لیکن جب آ کی آواز آتی ہے تو پھر تمام، جیسے آل، وال، وار، سٹار etc ہوتا ہے۔ اے کی آواز کبھی اے آتی ہے، جیسے کہ شیئر، فیئر، کیئر، ڈیئر۔ اے کے بعد آئی یا وائی ہو تو اے کی آواز اے کی آتی ہے اور اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے وے، مین، پے، برین۔ ای کا تلفظ، کبھی اے کی آواز آتی ہے جیسے نیٹ، وین، دین، لیگ۔ کبھی ای کی آواز آتی ہے جیسے وی، بی، شی، ہی۔ ڈبل ای ہو تو اس کی آواز کھینچ کر ای کی آتی ہے، جیسے ویپ، سی، سلیپ، وی۔ ای ایک ساتھ آئے تو اس کی آواز یہ چھوٹی یہ کی آتی ہے، جیسے کہ سی، کلین، ہیٹ، میٹ۔ ای کے کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اس سلسلے کے چند قاعدے دیکھتے ہیں۔ اگر پہلے اے آئے پھر
آخر میں ای آئے تو اے کی آواز اے آتی ہے اور ای کی آواز خاموش یعنی سائلنٹ ہو جاتی ہے، جیسے شیم، نیم، سیم، لیم۔ اگر پہلے آئی ہو تو پھر آخر میں ای ہو تو اس میں بھی ای خاموش ہو جاتا ہے اور آئی کی آواز ہی آتی ہے، جیسے کہ وائف، وائٹ، نائن، لائن۔ اگر پہلے او ہو اور آخر میں ای ہو تو او کی آواز او سے آتی ہے اور ای کی کوئی آواز نہیں آتی، جیسے کہ اسموک، ای سائلنٹ ہو جاتا ہے اور وہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ نوز، جوک، ہوپ۔ اگر پہلے یو ہو پھر آخر میں ای ہو تو ای کی کوئی آواز نہیں ہوگی اور یو کا تلفظ کبھی واو اور کبھی یو ہوتا ہے، جیسے جون، رول، ٹیوب، ٹیون۔ ای ڈبلیو ایک ساتھ آئے تو اس کا تلفظ یو ہوتا ہے، جیسے سیو، فیو، نیو، ڈیو۔ آئی کا تلفظ الف کے نیچے زیر ہوتا ہے، جیسے بگ، آئی ہے تو اگر آئی آیا تو بگ بن جائے گا، کل، ال، شپ۔ آئی کی آواز کبھی آئی ہوتی ہے، جیسے مائک، کائنڈ، بائنڈ، مائنڈ۔ اگر آئی کے بعد جی ایچ ہو تو آئی کی آواز آئی آتی ہے اور جی ایچ خاموش ہو جاتا ہے، جیسے لائٹ، ہائٹ، ہائی، نائٹ، رائٹ، etc۔ آئی کی آواز کبھی آئی آتی ہے، جیسے ڈرٹ، برتھ، فرم، شرٹ، etc۔ آئی کا تلفظ کبھی اے ہوتا ہے، جیسے ایڈمائر، مائر، فائر، ٹائر۔ آئی ای یا ای آئی ایک ساتھ آئے تو اس کا تلفظ الف چھوٹی ہو جاتا ہے، مطلب ای ہو جاتا ہے، جیسے اچیو، پیس، نیدر، آبجیکٹو، ڈیسیو۔ او کا تلفظ او ہوتا ہے، جیسے ڈاٹ، آن، ناٹ، ٹاپ۔ او کی کبھی آواز او کی آتی ہے، جیسے گولڈ، اوپن، اولڈ، ہوم۔ او ڈبلیو ایک ساتھ آئے تو اس کی آواز او کی آتی ہے، جیسے شو، سو، رو، کرو۔ او ڈبلیو کی آواز کبھی آؤ کی سی ہوتی ہے، جیسے ہاؤ، کاؤ، ناؤ، وو۔ ڈبل او ہو تو اس کی آواز او ہوتی ہے، جیسے مون، روم، ووڈ، روٹ۔ او یو ایک ساتھ ہو تو اس کی آواز کبھی آ اور کبھی او کی سی نکلتی ہے، جیسے آور، اور، کوپ، سوپ۔ او وائی کی شکل میں اس کی آواز آئے نکلتی ہے، جیسے جوائے، بوائے، ٹوائے، ہوئے۔ یو کا تلفظ یو کی کبھی آواز آئی نکلتی ہے، جیسے کپ، اپ، بٹ، ہٹ۔ یو کی آواز کبھی او بن جاتی ہے، جیسے پش، پٹ، پل۔ یو کی آواز کبھی یو کی طرح نکلتی ہے، جیسے ڈیوٹی، پیور، شور، ڈیوریبل۔ وائی کا تلفظ پرانی انگریزی میں واول کی طرح استعمال ہوتا تھا لیکن اب اس کی جگہ آئی استعمال کیا جاتا ہے، تاہم کبھی کبھی حرف علت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وائی کی آواز کبھی ای ہوتی ہے، جیسے بیوٹی، آئی سی، فلونی، پالیسی۔ وائی کی آواز کبھی آئی نکلتی ہے، جیسے ٹائیفائڈ، ٹائپ، ٹائر، ڈائنامیٹک۔ پروننسیشن آف کانسوننٹ، حروف صحیح کے تلفظ۔ کانسوننٹ کے تلفظ عموماً درج ذیل ہوتے ہیں۔ بی بے کی آواز دیتا ہے، سی سین کی آواز دیتا ہے، ڈی ڈال اور دال کی آواز دیتا ہے، ایف فے کی آواز دیتا ہے، جی گاف اور جیم کی آواز دیتا ہے، ایچ ہے اور ہا کی آواز دیتا ہے، جے جیم کی آواز دیتا ہے، کے کاف کی آواز دیتا ہے، ایل لام کی آواز دیتا ہے، ایم میم کی آواز دیتا ہے، این نون کی آواز دیتا ہے، پی پے کی آواز دیتا ہے، کاف کاف کی آواز دیتا ہے، آر رے کی آواز دیتا ہے، ایس سین اور سواد کی آواز دیتا ہے، ٹی تے اور ٹے کی آواز دیتا ہے، وی واو کی آواز دیتا ہے، ڈبلیو واو کی آواز دیتا ہے اور ایکس ایکس کی آواز دیتا ہے، وائی یہ کی آواز دیتا ہے اور زیڈ زال، زے، زواد اور زوئے کی آواز دیتا ہے۔ کبھی کبھی الفاظ کی ترتیب کی وجہ سے مذکورہ بالا حروف کی آوازیں بدل جاتی ہیں، اس سلسلے کا اصول نیچے دیے گئے ہیں۔ سی کا تلفظ، سی کے بعد وائی آئی ای میں سے کوئی آتا ہے تو اس کا تلفظ سین ہوتا ہے، جیسے نائس، رائز، سینما، سلنڈر، سائیکل، سٹیزن وغیرہ۔ سی کے بعد اگر ایل ٹی آر کے یو اے او میں سے کوئی آئے تو اس کی آواز کے نکلتی ہے، جیسے کیبل، کول، کیپ، کاؤ، کرس وغیرہ۔ سی کے بعد آئی اے ای اے ہو تو اس کی آواز شین بن جاتی ہے، جیسے سوشل، اوشین، اسپیشل۔ سی کے بعد ایچ ہو تو اس کی آواز کبھی چے، کبھی کاف اور کبھی شین بن جاتی ہے، جیسے مچ، ٹیچ، کیمسٹری، کولرا۔ ڈی کا تلفظ، اگر ڈی کے بعد یو یا آئی آتا ہے تو ڈی کی آواز میں جیم میں بدل جاتی ہے، جیسے ایجوکیشن، اب ایجوکیشن میں جیم بن گیا۔ ڈی کے بعد اگر یو آئے تو وہ جیم بن جاتا ہے، ایجوکیشن، گریجویٹ، سولجر۔ جی کا تلفظ، جی کے دو تلفظ ہیں، اگر جی کے بعد ای آتا ہے تو اس کا تلفظ جیم ہو جاتا ہے، جیسے کہ جیم، ایج، جینٹل، پیج۔ باقی اکثر جگہوں پر اس کا تلفظ گاف ہوتا ہے، جیسے گرل، گو، بگ، بیگ۔ ایس کا تلفظ، ایس کے خاص تین تلفظ ہوتے ہیں، زے، سین، شین۔
لفظ کے آخر میں وائی ڈبل ای او ای آئی ای جی ای ڈبل جی جی بی ای میں سے کوئی ہو تو پھر اس کے بعد ایس ہو تو اس کے آواز زے نکلتی ہے، جیسے ٹیوبز، ریگز، بیگز، ایگز، کیجز وغیرہ۔ کسی لفظ کے آخر میں جی ایچ ٹی ٹی ای کے ای پی ایف اور اس کے بعد ایس لگا ہو تو اس کی آواز سین ہوتی ہے، جیسے کہ روفس، ہوپس، کائٹس، نائٹس، جوکس، شپس وغیرہ۔ کسی لفظ میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد آئی او این آئی اے ہو تو شین کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے ایشیا، سیشن، ٹینشن، ملائیشیا۔ ٹی کا تلفظ، ٹی کے مختلف حالتوں میں یہ تلفظ ہوتے ہیں، جیسے شین، چے، تھے، دال۔ کسی لفظ میں اگر ٹی کے بعد آئی اے آئی ای آئی او ہو تو ٹی کی آواز شین نکلتی ہے، جیسے السٹریشن، پروموشن، نیشن، انیشیل وغیرہ۔ اگر کسی لفظ میں ایس کے بعد ٹی آئی او این ہو یا ٹی کے بعد یو آر ای آئے تو ٹی کی آواز چے میں بدل جاتی ہے، جیسے کرسچن، کویسچن، کلچر، فیوچر وغیرہ۔ اگر کسی لفظ میں ٹی کے بعد ایچ ہو تو کبھی اس کا تلفظ تھے سے ہوتا ہے اور کبھی دال کی آواز نکلتی ہے، جیسے تھن، تھک، دین، دس۔ کبھی کبھی ٹی ایچ کا لفظ ٹے سے کیا جاتا ہے، جیسے تھیمز، ٹامس۔ دی کو دی اور دا دونوں پڑھنا صحیح ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واول سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں دی ہو تو اسے دی پڑھا جاتا ہے، جیسے دی ایگ، اور اگر کانسوننٹ سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں دی ہو تو اسے دا پڑھا جاتا ہے، جیسے دا کیٹ۔ کسی لفظ کے آخر میں اگر جی ایچ ایک ساتھ آئے تو اسے ایف یعنی فے کی آواز آتی ہے، جیسے کف، لاف وغیرہ۔ سائلنٹ لیٹرز، خاموش حروف۔ انگریزی زبان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف لکھے جاتے ہیں لیکن اس کا تلفظ نہیں ہوتا، اسے سائلنٹ یعنی خاموش حروف کہا جاتا ہے۔ یہ حرف لفظ کے شروع، بیچ اور آخر کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ذیل کی سطروں میں اس کو پہچاننے کے لیے کچھ قواعد لکھے جا رہے ہیں، انہیں دھیان سے پڑھیں۔ اگر کسی لفظ میں ایم کے بعد یا ٹی سے پہلے بی آتا ہے تو یہ بی ہمیشہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے بام، ڈیٹ، کام، ڈاؤٹ۔ اگر کسی لفظ میں ایم کے بعد این آتا ہے تو این ہمیشہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، آٹم، ہیمن، کالم، کنڈیم۔ اگر کسی لفظ میں این یا ایس سے پہلے پی آتا ہے تو پی ہمیشہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے فینومینا، فینومیٹکس، سام، سائیکالوجی۔ اگر کسی لفظ میں ایم ایف کے ڈی سے پہلے الگ غلط بن گئی، نیمونیا پڑھتے ہیں اس کو اور نیومیٹکس پڑھتے ہیں۔ اگر کسی لفظ میں کے ڈی ایم ایف سے پہلے ایل آتا ہے تو ایل ہمیشہ سائلنٹ ہوگا، جیسے سام، کام، ہاف، واک، کوڈ، شوڈ وغیرہ۔ اگر کسی لفظ میں این سے پہلے کے آتا ہے تو کے ہمیشہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے نو، نائف، ناٹ، نوک۔ اگر کسی لفظ میں این سے پہلے جی آتا ہے تو جی ہمیشہ سائلنٹ ہوگا، جیسے ریزائن، نیٹ، ڈیزائن۔ اگر کسی لفظ میں سی سے پہلے ایس آتا ہے تو سی ہمیشہ سائلنٹ ہو جائے گا، جیسے سینٹ، سین، سائنس، سیزرس۔ اگر کسی لفظ میں ایچ کے بعد او یو یا او یو کٹھا آتا ہے، مطلب یو الگ او الگ یا پھر او یو کٹھا آتا ہے تو ایچ ہمیشہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، جیسے آور، آنر، آنیسٹ، 10۔ اگر کسی لفظ میں یو کے بعد اے ای آتا ہے تو یو ہمیشہ سائلنٹ ہوگا، جیسے گروڈن، گارڈ، گیسٹ، گیس۔ اگر کسی لفظ میں ڈبلیو ہو اور اس کے بعد آر ہو تو ڈبلیو ہمیشہ سائلنٹ ہوگا، جیسے رائٹ، رونگ، ریپ، ریت۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں جی ایچ ٹی جی ایچ آتا ہے تو جی ایچ ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، جیسے سائی، رائٹ، ہائی، نائٹ۔ اگر کسی لفظ میں جی سے پہلے ڈی کا لفظ ہو تو ڈی ہمیشہ سائلنٹ ہوگا، جیسے ایج، بجٹ، گرج، برج۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں ٹین ہو تو ہمیشہ ٹی سائلنٹ رہے گا، جیسے فاسن، اوفن، لسن، ہائسن۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں ای آتا ہے تو ای اکثر و بیشتر سائلنٹ رہتا ہے، جیسے ٹائم، نیم، جوک، رول۔ اجزائے کلام کی تقسیم، مطلب پارٹس آف اسپیچ۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے اس کا نام ورڈ یعنی لفظ ہے۔ مختلف لفظوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا جاتا ہے، جس جملے کو سینٹینس کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں یہ ورڈ انسان صرف 8 طرح نکال سکتا ہے، یعنی پارٹس آف اسپیچ 8 ہیں ٹوٹل۔ 9واں بھی ہوتا ہے لیکن اس سے پارٹس آف اسپیچ نہیں مانا جاتا، وہ آرٹیکل کو بعض لوگ پارٹس آف اسپیچ میں شامل کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کرتے، لیکن نہیں ہوتا وہ پارٹس آف اسپیچ میں۔ اچھا جی، پڑھتے ہیں کون کون سے۔ ناؤن یعنی اسم، پروناؤن یعنی ضمیر، ایڈجیکٹو یعنی صفت،
वर्ब यानी फ़ेल, एडवर्ब यानी मुतल्लिक फ़ेल, प्रेपोजिशन यानी हरफ जार, कंजंक्शन यानी हरफ अतफ, इंटरजेक्शन यानी हरफ ताज्जुब। ये आप इनको लिख लें उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आगे मज़ीद इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। पूरी ग्रामर में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलें अब अलग अलग डिस्कस करते हैं। नाउन इसम की तारीफ़ और तकसीम। नाउन की तारीफ़, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे पेन, दिल्ली, शॉप, करीम। नाउन की 5 किस्में हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, इसम मारफा, कॉमन नाउन, इसम नकरा, कलेक्टिव नाउन, इसम जमा, मटीरियल नाउन, इसम जिन्स या फिर मादा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसम कैफियत। 8 सबक। प्रॉपर नाउन इसम मारफा। प्रॉपर नाउन की तारीफ, किसी शख्स, ख़ास जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे दिल्ली, कुरान, कासिम, पटना वगैरह। इसका कायदा, प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन की कभी जमा नहीं बनती। प्रॉपर नाउन से पहले दी, एन या ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कॉमन नाउन इसम नकरा। कॉमन नाउन की तारीफ, जिस नाउन से गैर मुतय्यन शख्स, गैर मुतय्यन जगह या आम चीज़ का इल्म होता है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे बॉय यानी कोई भी लड़का, मैन कोई भी आदमी। कायदा, कॉमन नाउन का पहला हर्फ बड़ा नहीं होता, स्मॉल होता है। कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती है, जैसे बॉय है तो बॉयज़ बन जाता है। कलेक्टिव नाउन इसम जमा। कलेक्टिव नाउन की तारीफ, जिस नाउन से एक ही ज़ात के कई अफराद का मजमूआ का मफ़हूम पैदा होता है, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे आर्मी, फ़ौज, टीम, जमात। इसका कायदा यानी बनाने का रूल, कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद होता है। कलेक्टिव नाउन की अगर जमा बना दी जाए तो नाउन कॉमन नाउन बन जाता है, जैसे फैमिली से फैमिलीज़। फैमिली जो है वो कॉमन कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर फैमिलीज़ बना दें तो फिर वो कॉमन नाउन बन जाएगा। कॉमन नाउन क्यों, फिर वो जमा बन जाएंगी बहुत सारी फैमिलीज़, और फैमिली है तो कोई भी फैमिली हो सकती है, इसलिए कॉमन नाउन। मटीरियल नाउन इसम मादा। मटीरियल नाउन की तारीफ, जिस नाउन से किसी ऐसे मादे का मफहूम निकलता हो जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो इसे मटीरियल नाउन कहते हैं, जैसे वुड, लकड़ी, गोल्ड, सोना। मटीरियल नाउन हमेशा वाहिद होता है, अगर इसकी जमा बना दी जाती है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसम कैफियत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तारीफ, जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई, बुराई या इसकी हालत व कैफियत मालूम होती है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जैसे काइंडनेस, रहमदिली, फ्रेंडशिप, दोस्ती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा वाहिद होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी, एन या ए यानी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर की तारीफ। नंबर की तारीफ, जिस लफ्ज़ से नाउन के एक या एक से ज़्यादा होने का इल्म होता है, इसे नंबर कहते हैं। इसके 2 किस्में हैं, सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। सिंगुलर की तारीफ, जिस नाउन से एक का मफहूम पैदा होता है, इसे सिंगुलर कहते हैं, जैसे बॉय एक लड़का, गर्ल एक लड़की। प्लूरल की तारीफ, जिस नाउन से एक से ज़्यादा का मफहूम पैदा होता है, इसे प्लूरल कहते हैं, जैसे बॉयज़ कई लड़के, गर्ल्स कई लड़कियाँ। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कायदे। अंग्रेज़ी ज़बान में वाहिद से जमा बनाने का कोई जामिया और कुल्ली कायदा नहीं है, बल्कि कुछ राइज असूल हैं जिनसे कुछ मदद मिल जाती है, हर जगह काम नहीं आते। नीचे के असूल दर्ज हैं। सिंगुलर के आखिर में एस बढ़ा देने से प्लूरल बन जाते हैं, जैसे सिंगुलर कैट, कैट्स, फैन, फैंस, बैट, बैट्स, बुक्स, बुक्स वगैरह। जिस लफ्ज़ के आखिर में ओ, जेड, एक्स, सी, एच, एस, एच या एस में से कोई हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आखिर में ई एस लगाते हैं, जैसे क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस। जिस लफ्ज़ के आखिर में वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस बनाते हैं, जैसे बेबी, बेबीज़, फ्लाई, फ्लाइज। जिस लफ्ज़ के आखिर में एफ़ या ई एफ़ हो तो इनको बदलकर डब्ल्यू वी ई एस लगा देते हैं, जैसे कि लीफ, लीव्स, हाफ, हाफ्स, वाइफ, वाइफ्स। जिस लफ्ज़ के आखिर में मैन आता है, इसको जमा बनाने के लिए मैन को मैन कर देते हैं, मतलब एम ए एन की जगह एम ई एन कर देते हैं, जैसे वुमेन को भी वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन होता है, और जमा करें तो डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाता है। अच्छा जी, एक्सरसाइजेज आपने इसको देख के खुद करनी है, ताकि प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ इसको एक ये ऐप है जिसको इंग्लिश उर्दू आसान ग्रामर है, इसको कंप्लीट एक ही लेक्चर में करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कंप्लीट ग्रामर आपको एक ही लेक्चर में मिल जाए, जो कि अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। जेंडर, जिन्स की तारीफ़ और तकसीम। जेंडर की तारीफ, जिस वर्ड के ज़रिए किसी नाउन के मुज़क्कर, मुअन्नस या बेजान होने का इल्म होता है, इसे जेंडर कहते हैं। जेंडर की 4 किस्में होती हैं, जैसे मास्कुलिन जेंडर यानी मुज़क्कर, फेमिनिन जेंडर यानी मुअन्नस, कॉमन जेंडर जिन्स मुश्तरक या जानदार, न्यूटर जेंडर जिन्स मुश्तरक यानी बेजान चीज़ों का न्यूटर जेंडर कहते हैं। मास्कुलिन जेंडर की तारीफ, जिस नाउन से इसका मुज़क्कर होना मालूम होता है, इसे मास्कुलिन कहते हैं, जैसे मैन आदमी, किंग बादशाह, बॉय लड़का। फेमिनिन जेंडर, जिसकी तारीफ, जिस नाउन से इसका मुअन्नस होना मालूम होता है, इसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं,
जैसे लड़की या गर्ल। कॉमन नाउन, जिस नाउन से जानदार मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों समझ जाते हैं इसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसी तरह बेजान चीज़ों का न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फेमिनिन एंड मास्कुलिन बनाने के तरीके, कुछ नाउन के मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे कि फादर, मदर, अंकल, आंट, मैन, वुमेन। लेकिन कुछ मास्कुलिन के आखिर में एस या ESS बनाने से बन जाते हैं, जैसे टाइगर, टाइग्रेस, ऑथर, ऑथरेस, प्रिंस, प्रिंसेस वगैरह। कुछ नाउन के शुरू या आखिर में मुज़क्कर मुअन्नस पर दलालत करने वाले वर्ड बना देते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ही गोट, शी गोट। प्रोनाउन, ज़मीर की तारीफ़ और तकसीम। प्रोनाउन की तारीफ़, जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे ही, शी, इट वगैरह। प्रोनाउन की 8 किस्में हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन ज़मीर सवालिया, रिलेटिव प्रोनाउन ज़मीर मौसूला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मीर तकसीमी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन ज़मीर तनकीरी, एम्फेटिक प्रोनाउन ज़मीर ताकीदी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज़मीर मुश्तरका। आगे इनकी तफसीर पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर शख्सी। पर्सनल प्रोनाउन की तारीफ, जो प्रोनाउन किसी ख़ास शख्स, जगह या ज़ात को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, यानी फर्स्ट पर्सन मैं, बात करने वाला, और ये 2 है आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन यानी मुखातिब, जिससे बात की जाती है, जैसे कि यू, आप जो मुझे सुन रहे हैं वो यू, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन गाइड, यानी जिसके मुतालिक बात की जा रही है, जैसे कि इस बुक के लिखने के हवाले से बात की जाए तो वो जिसने लिखी है तो वो थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन जो है वो 4 होते हैं। ही यानी कोई मेल, शी मुअन्नस, इट कोई भी चीज़, बराए बगैर जी अकूल, मतलब ज़बीर अकूल जिसकी कोई अकल ना हो, बगैर अकल वाली कोई चीज़ जो होती है उसको इट उसके लिए यूज़ करते हैं। दे जमा के लिए यूज़ होता है, मतलब ही, शी, इट और दे ये 4 जो है वो थर्ड पर्सन है। आई और वी 2 जो है फर्स्ट पर्सन है, और यू जो आप है वो सेकंड पर्सन। हालत फ़ाइली, ऑब्जेक्टिव केस, हालत मफूली और पोजेसिव केस। पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस और पोजेसिव केस। हालत इजाफत में अलग अलग होती है, इसके नक्शे बता सके। आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं, ये केसेस क्या होते हैं। अच्छा जी, नॉमिनेटिव केस होता है यानी कि आई, मैं अगर बात करूँ, मैं कहती हूँ कि आई एम अ गर्ल, तो ये आई जो है वो नॉमिनेटिव केस हो गया। तो इसका मीनिंग होता है मैं। ऑब्जेक्टिव केस मी, मतलब जैसे एन एप्पल ईटन बाय मी, तो फिर ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। जब मी आ जाएगा तो वो मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रही हूँ, मुझको या मुझसे, जिस तरह ये पैसिव में यूज़ होते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव केस होते हैं माई, माइन, मतलब मेरा, पोजेशन का जो यूज़ करते हैं मेरा, जैसे ये मेरा मोबाइल है तो माई मोबाइल, माइन मोबाइल, तो ये पोजेसिव केस होते हैं। अब नॉमिनेटिव केस मतलब जो सब्जेक्टिव होता है, जो सब्जेक्ट के तौर पर अगर कोई आ रहा होता है प्रोनाउन, तो उसको नॉमिनेटिव केस हम कहते हैं। अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और इसी तरह अगर कोई पोजेशन के तौर पर आ रहा है तो फिर वो पोजेसिव केस होता है। होप सबके क्लियर हो गया होगा ये तीनों केसेस। अच्छा जी, अब नॉमिनेटिव केस कितने होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट नॉमिनेटिव केस होते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और पोजेसिव केस में माई, माइन, माइन, आवर, आवर्स, यूअर्स, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स, देयर्स वगैरह। अच्छा, ये उसमें इसकी वो डिटेल दी हुई एक्सरसाइज में, ये आप इसको पढ़ें और इसको लिख लें। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ज़मीर इस्तिफ़हामी, मतलब सवालिया, जिस प्रोनाउन से सवाल पूछे जाते हैं इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये 5 हैं, हु, हुज, होम, विच, व्हाट। इसको WH फैमिली भी कहते हैं। इसके कायदे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जुमले के शुरू में आते हैं। ये इसी वक्त प्रोनाउन होते हैं जब इनके बाद कोई फेल या मामून फेल होता है, जैसे हुज, होम, हु का इस्तेमाल ज़मीर अकूल के लिए होता है, जबकि व्हाट गैर ज़मीर अकूल के लिए, और विच का इस्तेमाल किसी चीज़ को मुंतखब करने के लिए ज़मीर अकूल और गैर ज़मीर अकूल दोनों के लिए होता है। हु का इस्तेमाल फ़ाइली, होम का इस्तेमाल मफूली, और हुज का इस्तेमाल हालत इजाफे के तौर पर होता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। हु वेंट दिल्ली, दिल्ली कौन गया। होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले। ये किताब किसकी है। हुज इज़ दिस बुक, विच इज़ योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। अच्छा जी, आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, जो मेरे मौसूला उर्दू में से कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की तारीफ, जो प्रोनाउन 2 जुमलों को जोड़ने का काम करता है
इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये जुमले के बीच में आते हैं। ज़मीर मौसूला से पहले आए हुए जुमले को एंटीसीडेंट कहते हैं। मर्जा और मौसूल कहा जाता है, जैसे व्हाट, विच, हु, दैट, हुम, हुज, व्हाट, एज वगैरह। रिलेटिव प्रोनाउन अमूमन जुमले के बीच में आता है। हुज, होम, हु का इस्तेमाल ज़वील अक़वाल के लिए होता है, मतलब ऐसे चीज़ें या ऐसे अफराद जो अक्ल रखते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, जबकि व्हाट गैर ज़वील अक़ल जो अक्ल नहीं रखते, और विच का इस्तेमाल जानवरों और बेजान चीज़ों दोनों के लिए होता है। मिसालें देखें, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट सक्सीड्स इन हिज लाइफ, वो आदमी जो ईमानदार है ज़िंदगी में कामयाब होता है। दीज आर द डॉग्स विच बिट द चिल्ड्रन, ये वही कुत्ते हैं जिन्होंने बच्चों को काटा। मज़ीद भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ें। दैट इंसानों और जानवरों के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे दिस इज़ द हॉर्स दैट क्राइड मी हियर, कैरिड मी हियर, ये वो घोड़ा है जो मुझे यहाँ लाया। दिस इज़ व्हाट आई वांट, यही वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ, चाहता था, चाहता हूँ आएगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये वही है जो मैं चाहता हूँ। जो हो गया सो हो गया। व्हाट इज़ डन इज़ डन। एज लफ्ज़ सच या सेम के बाद इस्तेमाल होने पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे दिस इज़ नॉट सच अ गुड कार एज आई एक्सपेक्टेड, ये ऐसी इतनी अच्छी कार नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। माई आंसर आर सेम एज योर्स, मेरे जवाब तुम्हारे जवाब की तरह ही हैं। बट का मफहूम होता है कि हु, नॉट या विच नॉट, यानी कोई ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नॉमिनेटिव यानी फ़ाइली हालत में इस्तेमाल होता है, पोजेसिव हालत और इजाफी हालत में मफूली में इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि देयर वाज नो वन पर्सन बट शेड टीयर्स, कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने आंसू ना बहाए हों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ज़मीर तकसीमी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तारीफ, जो नाउन जुमले में आए हुए अशखास या शख्स अशिया में से एक हर एक की वजाहत करें, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये 5 है। दोनों में से कोई नहीं, नीदर, इधर, दोनों में से हर एक, ईच हर एक, नन कोई नहीं, एनी कोई। कायदा इनका, इन अल्फाज के बाद हमेशा ओ एफ लगाया जाता है, ऑफ, जैसे नीदर, इधर का दो इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए होता है, ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए, एनी नन का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। मिसाल देखें, नीदर ऑफ दी टू पास, दोनों में से कोई पास नहीं हुआ। नीदर ऑफ देम वाज अ गुड प्लेयर, दोनों में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था। टेक ईदर ऑफ दोज टू मैंगोज, इन दोनों आमों को ले लो। सॉरी। ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों जा सकते हो। ईच ऑफ यू विल गेट अ प्राइज, तुम में से हर एक इनाम हासिल करेगा। एनी ऑफ दीज 5 बॉयज मे गो, इन 5 लड़कों में से कोई जा सकता है, मतलब कोई भी जा सकता है। नन ऑफ देम, नन जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, इनमें से कोई इसे नहीं कर सकता। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ज़मीर इशारा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से किसी नाउन की तरफ इशारा किया जाता है, इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये 4 है, दिस, दीज, दैट, दोज। इन प्रोनाउन के बाद फ़ौरन ब्लिंकिंग वर्ब फेल नाकिस आता है। ये अल्फाज हमेशा सब्जेक्ट के फ़ाइल या ऑब्जेक्ट के मफूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दिस बराए वाहिद और दीज बराए जमा करीबी चीज़ के इशारे के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, जबकि दैट बराए और वाहिद दोज बराए की दूर की जमक दूर की चीज़ों के लिए इशारा इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें देखते हैं, दिस इज़ अ बुक, ये किताब है। दीज आर द बुक, ये सब लड़के, मतलब करीब वाले। दैट वो दूर वाला। दैट इज़ अ मैन, सिंगल के लिए दैट यूज़ होता है और जमा के लिए दोज यूज़ होता है। दोज आर गर्ल्स, वो सब लड़कियाँ हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन ज़मीर तनकीरी। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो वो प्रोनाउन गैर मुतय्यन और नामालूम शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। ये दर्ज झेल हैं, ऑल तमाम, फ्यू कुछ, मैनी कई, सम कुछ, नन कोई नहीं, अदर और, एनीबडी नोबडी, समबडी नन, वन। ऑल वर हैप्पी, तमाम लोग खुश थे। वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना फ़र्ज अंजाम देना चाहिए। फ्यू विल पास, कुछ पास होंगे। समबडी स्टोलन माई कार, कुछ लोग मेरी कार चोरी कर चुके हैं। बी गुड टू अदर, दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आओ। इम्फेटिक प्रोनाउन ज़मीर ताकीदी, जिसमें कोई डायरेक्शन दी गई, हिदायत की गई है। इम्फेटिक प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए किया जाता है, इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के पोजेसिव केस के साथ सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स लगाकर बनाए जाते हैं, और जुमले में वर्ब या सब्जेक्ट के बाद लाते हैं। इसको इस नक्शे मुलाहिजा किया जाए, जैसे माई को माई सेल्फ बना दें तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। मीनिंग मैंने खुद।
our selves, yourselves, his, himself, her, herself, it, itself, their selves, one, what selves वगैरह. He punished himself, जैसे उसने खुद को खुद सजा दे दी. अच्छा जी, आगे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ज़मीर मुश्तरका. रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तारीफ, जो प्रोनाउन एक दूसरे से ताल्लुक़ व रब्त को ज़ाहिर करता है इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है. ये दो हैं, दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है और ये कुल दो हैं. ईच अदर, वन एन अदर. कायदा, ईच अदर का इस्तेमाल दो अशखास या दो चीज़ों के लिए होता है. वन एन अदर का इस्तेमाल दो से ज़ायद अशखास या दो चीज़ों के लिए होता है. जैसे कि द टू बॉयज़ लव ईच अदर, द टू गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर, द बॉयज़ क्वेरल्ड विद वन अनदर, द चिल्ड्रन बीट वन अनदर. अच्छा जी, द वर्ब फेल. वर्ब की तारीफ, जिस वर्ड से किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है इसे वर्ब कहते हैं. जैसे खालिद राइट्स अ लेटर, खालिद एक खत लिखता है. जाहिद गोज़ टू दिल्ली, जाहिद दिल्ली जाता है. वर्ब की 4 किस्में हैं. नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, फेल मुतद्दी इसे कहते हैं. इनट्रांजिटिव वर्ब, फेल लाजिम. लिंकिंग वर्ब, फेल नाकिस. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, फेल मावन. वर्ब की किस्मों की तारीफ, ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब जिस वर्ब का मफहूम ऑब्जेक्ट यानी मफूल के बगैर पूरा नहीं होता, इससे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है. जैसे शी राइट्स, अगर हम शी राइट्स लिखें तो सवाल पैदा होता है कि क्या अ लेटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. अगर हम शी राइट्स लिखें तो जुमला पूरा नहीं होता. तो ऐसे अल्फाज, मतलब ऐसे वर्ब जो आधे लिखे जाए तो जुमला पूरा नहीं होता, तो उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इसके अपोजिट होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिनको मुकम्मल करने के लिए मफहूम को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे आई स्लीप, तो इसको मतलब मैं स्लीप, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. अगर ऑब्जेक्ट आ भी जाए तो फिर मतलब जैसे मैं कहूँ कि आई स्लीप ऑन बेड, तो अब ये ऑन बेड जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बगैर भी अगर मैं कहूँ आई स्लीप तो फिर जुमला कंप्लीट हो जाता है. सारी बात है कि बेड किसी मैट्रेस किसी जगह पर ही सोता होंगे ना, तो इस वजह से इनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इस टाइप के वर्ब, जैसे ही स्विम्स इन द रिवर, वो नदी में तेज़ दौड़ता है. ये अगर हम खाली कहें ही स्विम्स तो भी जुमला कंप्लीट होता है कि पानी में ही तैरा जाता है ना. आगे लिंकिंग वर्ब तीसरी, जिस वर्ब के मफहूम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ कम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है. लिंकिंग वर्ब के लिए ज़रूरी है कि इसके बाद कोई वर्ब इस्तेमाल ना किया गया, क्योंकि अगर इसके बाद कोई वर्ब होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे. दर्जे, अब हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या फ़र्क होता है. अगर यही हेल्पिंग वर्ब अलग से इस्तेमाल किए जाएँ तो फिर वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं. अगर इसके बाद कोई वर्ब आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं. सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर को इज़ कहते हैं, इज़ यूज़ होता है इसके लिए. यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है. आई के साथ एम, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वाज, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ वर. इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आई, यू, ही, शी, इट और नेम को आप अलग याद कर लें. आई, यू, दे और वी को आप अलग याद कर लें. जो इन दोनों का अगर आप पेयर याद कर लेंगे ना, तो जो आई के साथ जो लगे, सिर्फ वाहिद आई होता है जिसके साथ एम लगता है. उसके अलावा यू, दे और कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ आर लगेगा. आर लगेगा तो पास्ट में वर लगेगा और फ्यूचर में शैल लगता है उसके साथ, और बाकियों के साथ विल लगेगा. इस तरह एक सीरीज़ याद कर लेना तो बाकी उसके अपोजिट के साथ दूसरे वो हो जाते हैं याद. इस तरह अब जैसे आई एंड वी के साथ शैल भी लगता है. ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ विल भी लगेगा. इसके जुमले में पहले वाले हिस्से को जिसमें जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहते हैं, यानी मुब्तदा कहा जाता है. उर्दू में मुब्तदा कहते हैं, अरबी में भी मुब्तदा होता है. और दूसरे वाले हिस्से को जिसमें जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट, मतलब एक हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं जिसमें कोई बात बताने वाला होता है और जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, तो जिस यानी खबर जिसके बारे में खबर दी जा रही है तो उसे प्रेडिकेट कहा जाता है. जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ही जो है वो मुब्तदा है यानी सब्जेक्ट है और बाकी पूरा हिस्सा इज़ से लेकर एंड तक वो प्रेडिकेट है. इन मिसालों में ख़त कशीदा अल्फाज सब्जेक्ट यानी मुब्तदा हैं और तिरछे अल्फाज यानी प्रेडिकेट यानी खबर है और बीच के सभी अल्फाज लिंकिंग वर्ब है. मतलब जैसे इल है, विल, वी है, इज़ है, बाज है, ये वाले सारे, तो ये जो है वो प्रेडिकेट है. मैं इसको सच राइट डाउन इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो और तो लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाते हैं. ज़्यादा लंबे लेक्चर को सुनने का ये तरीका होता है कि आप पॉज ले लेके मतलब थोड़ा सा सुने 15-20 मिनट का या आधे घंटे का, तो फिर उसको स्टॉप कर दें और स्टॉप करने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर दोबारा सुन लें.
वीडियो रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा होता है कि आप कंटिन्यूसली बैठ नहीं सकते, लेकिन ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। इससे आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, और ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि उर्दू ग्रामर भी आपकी अच्छी हो जाएगी। उर्दू में बहुत सारी चीज़ें, हमें उर्दू तो आती है लेकिन हमें उर्दू की ग्रामर नहीं आती। इसी तरह जैसे इंग्लिश ग्रामर है, तो आप बहुत सारे नेटिव इंग्लिश जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं उनको भी ग्रामर के बहुत सारे रूल्स नहीं पता होते। तो खैर, ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो वो मैं दरमियान में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताकि थोड़ी आप ब्रेक लें। अगर कोई लोग, कुछ लोगों की आदत होती है वो कंटिन्यूसली सुने, तो वो दिमाग थक जाता है बहुत ज़्यादा। अगर हम कंटिन्यूसली रीडिंग कर लेते हैं तो वो रिटेन नहीं कर पाता। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम या तो पॉज लें, या फिर हम उस दौरान कोई और मतलब बात कर लें इसी तरह, जो बेशक उससे रिलेट कर रही हो लेकिन वो उसको माइंड स्टोर करता रहे ना। खैर चलें, जो भी मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। यकीनन क्योंकि हम वो कम हैं जो एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ते हैं, तो ये होप सो एक लेक्चर आपको एक रात पहले भी अगर आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, फेल माउन। ऑक्सिलरी वर्ब की तारीफ, जिस वर्ब के ज़रिए वर्ब की मुख्तलिफ शक्लों और ज़मानों को बनाया जाता है इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे ही डज़ नॉट टॉक, वो बात नहीं करते, ये फेल हाल है। ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा था, फेल माजी। ही विल टॉक, फेल मुस्तकबिल। हेल्पिंग वर्ब की दो किस्में हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, एम, इज़, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर दर्ज इस्तेमाल होते हैं, अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, एम, टू, इज़, टू, आर, टू हैव, टू, इटीसी, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड। इन दोनों के मौके इस्तेमाल और पाए जाने वाले फ़र्क को इस नक्शे से समझा जाता है। ये अगर आप लिख लें तो आपको बहुत काम आएंगे कि कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं और कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को फेल के बगैर तनहा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही इज़ अ रिच मैन, ही हैज़ मच वेल्थ। अब मॉडल और ऑक्सिलरी का फेल के बगैर तनहा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे ही शुड गो। अब गो जो है वर्ब है और पहले वाले जुमले में कोई वर्ब यूज़ नहीं है। जो इज़ है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शी माइट पास। प्राइमरी और ऑक्सिलरी सब्जेक्ट यानी फाइल के नंबर के मुताबिक बदल दिया जाता है, जैसे आई एम गोइंग होम, दे आर गोइंग होम। मॉडल और ऑक्सिलरी फाइल के नंबर के मुताबिक नहीं बदलता है, मतलब कि हमेशा यकसा रहता है, जैसे आई विल गो, दे विल गो। मतलब आर उसमें नहीं लगता, प्लूरल वाली फॉर्म नहीं लगती मॉडल में, वही का वही रहता है। हैव, डू, बी से पहले टू लगाकर इन्हें इन्फिनेटिव मस्दर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शी वांट्स टू बी रिच, शी वांट्स टू डू इट, शी वांट्स टू हैव। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी से पहले टू नहीं लगाया जा सकता, जैसे टू, विल, टू, कैन। बी और हैव के साथ आईएनजी लगाकर इन्हें पार्टिसिपल सिफ्त फेली बनाया जा सकता है, जैसे बीइंग टायर्ड, आई वेंट होम। हैविंग पास्ड, शी वाज वेरी हैप्पी। किसी भी मॉडल और ऑक्सिलरी के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सभी मॉडल और ऑक्सिलरी के साथ सिर्फ और सिर्फ फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आई विल गो, यू कैन गो। बी और हैव के साथ फेल की पहली किस्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे दे हैव गो कहना गलत होगा, बल्कि दे हैव गोन कहा जाएगा। फॉर्म्स, द वर्ब फॉर्म्स, फेल की शक्लें। फॉर्म की तारीफ, ज़माने की किस्मों, माजी, हाल और मुस्तकबिल को जाहिर करने के लिए वर्ब फेल की जो शक्ल में इस्तेमाल होती है इन्हें फॉर्म कहते हैं। जैसे वर्ब की तर्ज़ चार फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म पहली शक्ल, सेकंड फॉर्म दूसरी शक्ल और थर्ड फॉर्म तीसरी शक्ल। आईएनजी फॉर्म इस्तमरारी शक्ल कहते हैं। आईएनजी जोड़ने के कायदे, अगर किसी वर्ब के आखिर में ई हो तो आईएनजी जोड़ते वक्त ई को हटा दिया जाता है, जैसे कम, कमिंग, राइट, राइटिंग, अब्यूज़, अब्यूजिंग। अगर किसी वर्ब के आखिर में डब्ल्यू, आर, वाई के अलावा कोई और कॉन्सोनेंट हो और इससे पहले एक वावल हो तो आईएनजी जोड़ते वक्त आखिरी हर्फ को दोबारा लिखा जाता है, जैसे कट, कटिंग, स्विम, स्विमिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग। और अगर किसी वर्ब के आखिर में आर, डब्ल्यू, वाई में से कोई एक हो और इससे पहले कोई वावल हो तो आईएनजी जोड़ते वक्त आखिरी हर्फ दो बार नहीं लिखा जाता, जैसे ब्लो, ब्लोइंग, वाटर, वाटरिंग, प्ले, प्लेइंग। अगर किसी वर्ब के आखिर में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो इसमें आईएनजी जोड़ते वक्त कोई तब्दीली नहीं की जाती, जैसे आइंग, मतलब ई वाई ई है तो उसके आगे आईएनजी लगा दिया जाता है। शोइंग, अग्रींग। अगर किसी वर्ब के आखिर में आई ई हो
تو اس میں آئی این جی جوڑتے وقت آئی ای کو وائی میں بدل دیتے ہیں، جیسے لائنگ، ڈائنگ۔ اگر کسی ورب کے آخر میں سی ہو تو اس میں آئی این جی جوڑتے وقت تو سی کے بعد کے بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے فرولکنگ، فرولک سے مستی کرنا، میمک، میمکنگ۔ ورب کی مختلف شکلیں الفاظ کی رد و بدل سے بنائی جاتی ہیں اور اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، البتہ درج ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی ورب کے آخر میں ڈی یا ای ڈی لگا کر دوسری اور تیسری شکل بنائی جاتی ہے، جیسے کہ آسک فرسٹ فارم ہے، آسکڈ سیکنڈ فارم، آسکڈ تھرڈ فارم اور آسکنگ آئی این جی فارم۔ اس کا مطلب پوچھنا، مطلب جیسے آسک پوچھنا، آسکڈ پوچھا، اور آسکڈ پوچھتا تھا یا پوچھتا تھی وغیرہ، اور آسکنگ پوچھ رہا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ اور جیسے کال، کالڈ، کالنگ، کلوز، کلوزڈ، کلوزنگ۔ جس ورب کے آخر میں وائی ہو اس کو ہٹا کر آئی ڈی یا آئی ای ڈی لگا کر دوسری اور تیسری شکل بنائی جاتی ہے، جیسے کہ کاپی، کاپیڈ، کاپنگ، سے، سیڈ، سیڈ، سینگ، ریپلائی، ریپلائڈ، ریپلائنگ۔ کبھی کسی ورب کے آخر میں ٹی یا کسی دوسرے الفاظ کو جوڑ کر دوسری اور تیسری شکلیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ بینڈ، بینٹ، بینٹ، بینڈنگ، برنگ، براٹ، براٹ، برنگ، بلڈ، بلٹ، بلٹ، بلڈنگ۔ کبھی کبھی ورب تینوں فارم میں ایک ہی رہتا ہے، جیسے کہ ویٹ، 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 ویٹنگ، کٹ، 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 کٹنگ، لیٹ، لیٹ، لیٹنگ۔ کبھی کبھی ورب کسی قاعدے کے بغیر تینوں فارم میں الگ ہو جاتا ہے، جیسے اویک، اووک، اویکن، ارائز، اروز، ارائزن وغیرہ۔ سینٹینسز اینڈ ٹینسز۔ ٹینسز اینڈ سینٹینسز زمانہ اور جملہ۔ زمانے کی تین قسمیں ہیں: پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، مطلب زمانہ حال، زمانہ ماضی، زمانہ مستقبل۔ پھر ان تینوں قسموں کی چار قسمیں ہیں: انڈیفینٹ، متعلق یا غیر متعین، کنٹینیوس، استمراری یا جاری، پرفیکٹ، مکمل، پرفیکٹ کنٹینیوس، مکمل جاری، افرمیٹیو۔ جملے کی 6 قسمیں ہیں: افرمیٹیو، یہ اوپر والے جو ہیں یہ ٹینسز ہیں، اور اب جملے ہیں۔ جملے کی 6 قسمیں ہیں: افرمیٹیو سینٹینس یعنی مثبت جملہ، نیگیٹو سینٹینس یعنی منفی جملہ، انٹروگیٹو افرمیٹیو سینٹینس یعنی ہیلپنگ ورب، فعل معاون سے شروع ہونے والا مثبت سوالیہ جملہ، انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس ود ہیلپنگ ورب، فعل معاون سے شروع ہونے والا منفی جملہ، انٹروگیٹو افرمیٹیو سینٹینس کوسچن ورڈ، سوالیہ لفظ سے شروع ہونے والا مثبت جملہ، انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس کوسچن ورڈ، سوالیہ لفظ سے شروع ہونے والا منفی جملہ۔ انگریزی میں سوالیہ الفاظ 12 ہیں، جیسے واٹ کیا، ویئر کہاں، وین کب، وائی کیوں، ہوز کس کی، ہوم کس کو، کسے، وچ کون سا کون سی، ہاؤ کیسے، ہو کون کس نے، ہاؤ مینی کتنے، برائے تعداد، ہاؤ مچ کتنے، برائے مقدار، ہاؤ لانگ کب سے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس زمانہ حال مطلق۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی تعریف: جن جملوں میں موجودہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے سے متعلق بات معلوم ہوتی ہے اسے زمانہ حال مطلق پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ علامت تا ہے، تے ہیں، تی ہے وغیرہ ہوتی ہیں۔ ہیلپنگ ورب معاون فعل ڈو اور ڈز۔ ڈو، آئی، وی، یو، دے اینڈ پلورل کے ساتھ ڈو لگتا ہے، اسی طرح ہی، شی، اٹ اور کسی سنگولر کے ساتھ ڈز لگتا ہے۔ قاعدہ: افرمیٹیو یعنی مثبت جملہ سبجیکٹ پلس ورب پلس فرسٹ فارم آف ورب لگتی ہے۔ نیگیٹو منفی جملہ بنانے کے لیے فرسٹ فارم سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ پلس ورب فرسٹ فارم۔ یہ اگر آپ یہ قاعدہ ہی اگر ایک پیج کے اوپر اسی طرح سارے لکھ لینا تو ٹینس کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں بولتے میرے۔ اچھا جی، کنجوگیشن، گردان۔ جیسے عربی میں گردان ہوتی ہے نا، ضربہ 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 وقت والی، اسی طرح عربی میں بھی گردان ہوتی ہے۔ آئی گو، میں جاتا ہوں، آئی ڈونٹ گو، میں نہیں جاتا، نیگیٹو۔ ڈو آئی گو، کیا میں جاتا ہوں، انٹروگیٹو افرمیٹیو ود ہیلپنگ ورب۔ ڈونٹ آئی گو، کیا میں نہیں جاتا، انٹروگیٹو نیگیٹو ود دا ہیلپنگ ورب۔ ویئر ڈو آئی گو، میں کہاں جاتا ہوں، انٹروگیٹو افرمیٹیو ود دا کوسچن ورڈ۔ ویئر ڈونٹ آئی گو، میں کہاں نہیں جاتا، انٹروگیٹو نیگیٹو ود کوسچن ورڈ۔ اگر آپ صرف ایک یہی یاد کر لینا تو یہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر تینوں کے یاد ہو جاتے ہیں، صرف ہیلپنگ ورب چینج ہوتے ہیں، باقی سیم ہوتا ہے۔ اب جیسے افرمیٹیو، ہی گوز، وہ جاتا ہے، ہی ڈزنٹ گو، وہ نہیں جاتا، ڈز ہی گو، کیا وہ جاتا ہے، ڈزنٹ ہی گو، کیا وہ نہیں جاتا۔ ویئر ڈز ہی گو، وہ کہاں جاتا ہے، ویئر ڈزنٹ ہی گو، وہ کہاں نہیں جاتا۔ ہی، شی، اٹ اور سنگولر کے سینٹینس میں افرمیٹیو میں ورب کے آخر میں ایس یا ای ایس لگایا جاتا ہے، جیسے اٹ رینز، شی ٹاکس، ہی گوز۔
اگر اردو یا ہندی وغیرہ زبانوں میں سوالیہ جملے سوالیہ لفظ کیا سے شروع کیا جاتے ہیں، مثلاً کیا میں سوتا ہوں، کیا تم پڑھتے ہو وغیرہ، تو اس کیا کی انگریزی بنانے کے لیے کوئی لفظ نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ سبجیکٹ کے ساتھ سبجیکٹ سے پہلے ڈو یا ڈز لگا کر جملے کی شروعات کرتے ہیں اور ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہوتا ہے۔ ڈو یو ریڈ، ڈز ہی سلیپ، کیا تم پڑھتے ہو، کیا وہ سوتی ہے۔ اگر سوالیہ جملے میں سوالیہ الفاظ جیسے کیوں، کہاں، کیسے وغیرہ کے جملے کے درمیان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سوالیہ الفاظ کی انگریزی لکھی جاتی ہے اور پھر سبجیکٹ کے مطابق ہیلپنگ ورب لگا کر سبجیکٹ لکھتے ہیں اور آخر میں فرسٹ فارم ورب لکھتے ہیں، جیسے ویئر ڈز ہی گو، مطلب ویئر پہلے آئے گا، وہ کہاں سوتی ہے۔ وہ جیسے سوال تھا نا اوپر کیا وہ سوتی ہے، ڈز ہی سلیپ، لیکن پھر ایک اور سوال مطلب ڈبل سوالیہ اگر ہو کہ وہ کہاں سوتی ہے تو پھر ویئر ڈز ہی سلیپ، وین ڈو یو اویک، تم کب جاگتے ہو۔ سوالیہ ہو کے بعد ورب ہیلپنگ ورب یعنی ڈو اور ڈز نہیں لگایا جاتا اور اس کے فوراً بعد ورب لایا جاتا ہے، باقی سوالیہ کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگایا جاتا ہے، جیسے ہو ٹیچ یو، تمہیں کون پڑھاتا ہے، ہو بیٹ ہر، اسے کون مارتا ہے۔ نیگیٹو سینٹینس میں کبھی نہیں کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے نیور کا استعمال کرتے ہیں، نیور کے ساتھ ہیلپنگ ورب ڈو یا ڈز نہیں لگایا جاتا ہے اور ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں اور سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کے آخر میں ایس یا ای ایس بھی لگایا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں، ہی نیور رائٹس، وہ کبھی نہیں لکھتا، شی نیور ٹاکس، وہ کبھی نہیں بات کرتی، یو نیور میٹ، تم کبھی نہیں ملتے، وی نیور ڈرنک، ہم کبھی نہیں پیتے۔ نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب اور اس کے بعد نوٹ کا لفظ لگاتے ہیں۔ ماڈرن انگریزی میں اختصار کے پیش نظر ہیلپنگ ورب اور نوٹ کو ملا کر اس طرح لکھ دیتے ہیں، ڈزنٹ مطلب اپوسٹرافی لگا دیتے ہیں، ڈو نوٹ کو ڈونٹ کر دیتے ہیں اور ڈز نوٹ کو ڈزنٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، ایکسرسائز سب آپ دیکھ لیں۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، زمانہ حال جاری۔ پریزنٹ کنٹینیوس کی تعریف جن جملوں میں سے موجودہ زمانے میں کام کے جاری اور مسلسل ہوتے رہنے کی بات ہوتی ہے اسے پریزنٹ کنٹینیوس کہا جاتا ہے۔ اوپر جو ہم نے پڑھا پریزنٹ انڈیفینٹ تھا، اب کنٹینیوس آ گیا جو کنٹینیو چل رہا ہوں، مسلسل۔ ہیلپنگ ورب اس میں از ایم آر یوز ہوتے ہیں، ہی شی اٹ یا سنگولر کے ساتھ یوز ہوتا ہے، دے یو اور پلورل وی اور پلورل کے ساتھ آر یوز ہوتا ہے اور آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے۔ قاعدہ، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب یا اور پلس آئی این جی اور پلس آبجیکٹ یوز ہوتا ہے۔ وہ جا رہا ہے، ہی از گوئنگ، ہی از ناٹ گوئنگ، وہ نہیں جا رہا ہے، از ہی گوئنگ، کیا وہ جا رہا ہے، ازنٹ ہی گوئنگ، کیا وہ نہیں جا رہا، ویئر از ہی گوئنگ، وہ کہاں جا رہا ہے، ویئر ازنٹ ہی گوئنگ، وہ کہاں نہیں جا رہا ہے۔ اب اسی طرح یو کے لیے، یو آر گوئنگ، تم جا رہے ہو، یو آر ناٹ گوئنگ، آر یو گوئنگ، آر ناٹ یو گوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر ناٹ یو گوئنگ۔ آئی کے لیے بھی یہ سیم، آئی ایم گوئنگ، آئی ایم ناٹ گوئنگ، ایم آئی گوئنگ، ایم آئی ناٹ گوئنگ، ویئر ایم آئی گوئنگ، ویئر ایم آئی ناٹ گوئنگ۔ اس کو پریکٹس کے لیے اگر آپ ایک پیج کے اوپر اسی طرح یہ گردان کی طرح لکھ لینا ایک ہی جملے کو سب کے ساتھ ملا کے، مطلب جیسے یہ آئی پہلا ہے نا تو ویئر آئی ایم گوئنگ، پھر ویئر آئی واز گوئنگ، ویئر آئی ول گوئنگ، بی گوئنگ، تو پھر اس طرح آپ کو یہ سارے 12 کے 12 ٹینسز ایزیلی یاد ہو جائیں گے۔ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ اگر جملے کی شروعات سوالیہ لفظ کیا سے ہو رہی ہے تو اس کے انگریزی کے لیے سبجیکٹ کے مطابق ہیلپنگ ورب یعنی از ایم آر کو جملے کے شروع میں لاتے ہیں، جیسے آر یو ٹاکنگ، کیا تم بات کر رہے ہو، ایم آئی سلیپنگ، کیا میں سو رہا ہوں، از ہی گوئنگ، کیا وہ گا رہی ہے۔ اگر جملے کے درمیان میں سوالیہ الفاظ کیوں، کہاں، کیسے وغیرہ کے آئے تو پہلے ان سوالیہ الفاظ کے انگریزی لایا جاتا ہے، جیسے ویئر آر وی اویکنگ، ہم لوگ کیوں جاگ رہے ہیں، ویئر از ہی سٹنگ، وہ کہاں بیٹھ رہی ہے، وین ایم آئی گوئنگ، میں کب جا رہا ہوں۔ نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ورب اور اس کے بعد نوٹ کا لفظ لگاتے ہیں۔ ماڈرن انگریزی میں اختصار کے پیش نظر ہیلپنگ ورب اور نوٹ کو ملا کر اس طرح لکھتے ہیں، جیسے از پلس نوٹ ازنٹ، آر پلس نوٹ آر نٹ، ایم نوٹ میں تبدیلی نہیں لائی جاتی، ایم نوٹ کو ویسے کے ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، زمانہ مکمل۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی تعریف جن جملوں میں سے ایک کسی کام کے مکمل ہونے یا کرنے کی معلوم ہوتی ہے اسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں بھی ہیلپنگ ورب وہی ہیز ہیو ہوتا ہے، ہیز جو ہے وہ ہی شی اٹ اور سنگولر کے یوز ہوتا ہے، ہیو آئی یو وی دے اور پلورل کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ وہی ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب کی تھرڈ فارم شروع ہوتی ہے اور پلس سبجیکٹ۔ سینٹینس اسٹرکچر سب کا صحیح ہے، صرف زمانے کے حساب سے ورب کی فارم چینج ہو جاتی ہے، جیسے آئی ہیو گون، آئی ہیونٹ گون، ہیو آئی گون، سیم وہی رول یوز ہوگا، صرف گون یوز ہو جائے گا، جیسے اس میں گو تھا گون ہو گیا۔
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ काम का ख़त्म होना मालूम होता है वहीं यह भी मफहूम होता है कि अभी काम ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं है। मनफी जुमले में अभी तक काम का मफहूम पैदा करने के लिए सो फार या येट और कभी का मफहूम पैदा करने के लिए एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दे हैव नॉट सीन द ताजमहल येट, उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। सिस्टर हैज़ नॉट टेकन हर फूड सो फार, बहन ने अभी तक अपना खाना नहीं खाया। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, क्या तुमने कभी लाल किला देखा। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नॉट का लफ्ज़ लगाते हैं। मॉडर्न अंग्रेजी में इख्तिसार के पेश नज़र हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर इस तरह लिखते हैं, हैज़ नॉट, हैव नॉट। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ज़माना हाल मुकम्मल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तारीफ, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना हाल में कुछ वक्त से जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। अलामत आ रहा है, ते रहे हैं, ती रही है वगैरह आता है। हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है और सेम उसी तरह हैज़ बीन जो है शी इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, हैव बीन आई यू दे वी और प्लूरल के साथ यूज़ होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव बीन गोइंग, आई हैव नॉट बीन गोइंग, सेम रूल यूज़ होगा। ही हैज़ बीन गोइंग, हैज़ के बाद बीन लगा देना सिर्फ और गोइंग हो जाएगा कंटिन्यूस वाला। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़माना हाल जारी में वक्त नहीं लिखा जाता, जबकि ज़माना हाल मुकम्मल जारी में वक्त लिखा जाता है। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी मुतय्यन वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सुबह, शाम, कल, परसों, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन टाइम जैसे 2 बजे से 5 बजे से वगैरह मुतय्यन में वक्त में शुमार किया जाता है, इसलिए इसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। और मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल वगैरह जैसे 5 मिनट से 3 घंटे से, अब 3 घंटे पता नहीं कौन से 3 घंटे से, इसलिए इनके साथ गैर मुतय्यन वक्त समझा जाता है, इसलिए इनके साथ फोर का इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से जा रहा हूँ। दे हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours, 3 hours हम 3 घंटे से खाते रहे हैं। इसी तरह दे हैव बीन बीटिंग फॉर 5 weeks, वो 5 हफ्ते से पिटाई करते रहे। अब पता नहीं कौन से 5 हफ्ते हैं, इसलिए उसके साथ फोर लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ज़माना माजी मुतलक। अब प्रेजेंट में जो रूल्स हैं पास्ट में भी वही रूल्स होते हैं और फ्यूचर में भी वही रूल्स होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो लिहाजा मैं हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करके मज़ीद आगे चलती हूँ क्योंकि वो पूरा नहीं होगा फिर इसमें जल्दी। मज़ीद ये मैं स्लो डाउन स्क्रॉल करती हूँ, आपको अगर जिसको चाहिए तो वो पढ़ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ, जिन जुमलों से ये बात मालूम होता है कि काम पहले मुकम्मल हो चुका था तो इसे पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। अलामत था, थे, थी, लिया, दिया वगैरह जैसे डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें डिड यूज़ होता है और सबके साथ ही डिड यूज़ होता है। आई, वही, दे, यू, ही, शी, इट और सिंगुलर प्लूरल तमाम के साथ डिड यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कायदा मनफी जुमले बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। जैसे ही वेंट, ही डिडंट गो, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और अगर नेगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेकिन साथ डिड लगेगा। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेकिन क्वेश्चन में डिड लगेगा। कभी नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद नेवर और इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही नेवर फॉरगॉट, वो कभी नहीं भूलता था। शी नेवर स्पोक, वो कभी नहीं बोलती थी। सवालिया जुमले बनाने के बारे से बाकी सब कायदे वही हैं जो इससे पहले आ चुके हैं। आगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ज़माना माजी, इसमें भी सेम रूल है, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है, वो है वाज और वर यूज़ होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ वाज यूज़ होगा और यू, दे और प्लूरल के साथ वर यूज़ होता है। हेल्प और रूल इसका यही है, आई वाज गोइंग, आई वाज नॉट गोइंग वगैरह। पास्ट परफेक्ट टेंस, ज़माना माजी मुकम्मल, ज़माना माजी में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है और वो है हैड और इसकी अलामत होती हैं उर्दू के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था वगैरह आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड गॉन, हैड यूज़ होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। सारे 12 के 12 टेंसेज में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ब की फॉर्म सब कुछ सेम होता है सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, बाकी किसी में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती।
अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ज़माना माजी मुकम्मल जारी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तारीफ वो इसमें ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी वगैरह आता है, जिसमें माजी में कुछ वक्त से होता आ रहा था और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होता है और सबके साथ ही हैड बीन यूज़ होता है। ही हैड बीन गोइंग, वो जाता रहा था। अच्छा जी, कायदा इसका पढ़ लेते हैं। ज़माना माजी मुकम्मल जारी में काम के जारी रहने का वक्त दिया जाता है। मुतय्यन वक्त के लिए सिंस और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल होता है। इसका भी सेम रूल है। फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ जाते हैं। ज़माना मुस्तकबिल मुतलिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है तो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है। अगर आपको ये 12 के 12 हेल्पिंग वर्ब याद हो जाते हैं कि किस में कौन सा लगना है तो टेंसेस सारे के सारे आ जाते हैं। आई और वे के साथ ख्याल लगता है। ही शी इट यू दे और सिंगुलर प्लूरल के साथ विल यूज होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, इसी तरह चलेगा। कायदा यकीन आमादगी हुक्म या मजबूरी जाहिर करते वक्त आई वी के साथ इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब यानी शैल के बजाय विल का इस्तेमाल होगा। इसी तरह ही शी इट वगैरह के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ज़माना मुस्तकबिल जारी। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी है इससे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। अलामतें रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह। शैल बी, विल बी और आई और वी के साथ शैल बी और यूज़ होगा और यू दे ही शी इट और सिंगुलर के साथ प्लूरल विल बी यूज़ होगा। कायदा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट कंजुगेशन, मतलब इसके किरदार आई शैल बी गोइंग, ये भी सेम उसी तरह ही चलेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तारीफ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है जो कि शैल हैव और विल हैव। अलामतें इसकी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह। शैल हैव आई वी के साथ शैल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम, आई शैल हैव गॉन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस माना मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में लगातार होता रहा होगा तो इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। अलामतें ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी वगैरह। शैल हैव बीन, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सबके साथ विल हैव बीन यूज़ होता है। कायदा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, मतलब आई शैल हैव बीन गोइंग, में जाता रहा होऊंगा। बाकी सेम। ज़माना हाल मुकम्मल जारी, काम के जारी रहने का वक्त बताया जाता है। मुतय्यन वक्त के लिए सिंस और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। इसके लिए भी सेम यूज़ होता है। मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। ही विल कंटिन्यू वर्क, ही विल हैव बीन वर्किंग, शी विल कंटिन्यू रीड, ही विल हैव बीन रीडिंग। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले। जिन जुमलों से हुक्म, गुजारिश, दरख्वास्त या राय दी जाती है इसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी हुक्मिया जुमला कहा जाता है, जैसे करो, पढ़ो, लिखो वगैरह। कायदा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत जुमले में फर्स्ट फॉर्म वर्ब के से जुमले की शुरुआत की जाती है, अमरिया व हुक्मिया जुमले बन जाते हैं। मिसाल देखिए, रीड, कम, आओ। नेगेटिव यानी मनफी जुमले अच्छा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेगेटिव यानी मनफी जुमलों में जुमले की शुरुआत डू नॉट और कभी नहीं का मफहूम के लिए नेवर से करते हैं और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डू नॉट ड्रिंक, मत पियो। नेवर गो, कभी मत जाओ। रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त वाले जुमलों में काइंडली, प्लीज़ से जुमले का आगाज़ करते हैं। काइंडली हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। प्लीज़ स्लीप, बराए करम सो जाओ। राय या तजवीज़ वाले जुमले में लेट से जुमले का आगाज़ करते हैं, जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। आगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सॉरी, फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। एक्टिव वॉइस फ़ेल मारूफ की तारीफ जिस जुमले से ये बात मालूम हो कि सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को तरजीह दी गई हो और सब्जेक्ट फ़ाइल का रोल अदा कर रहा है तो इसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस फ़ेल मजहूल की तारीफ जिस जुमले में ये बात मालूम हो कि ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल को तरजीह दी गई है और वर्ब फ़ेल की निस्बत ऑब्जेक्ट की तरफ की गई है तो इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब यानी फ़ेल मुतअद्दी से बनाया जाता है। फ़ेल मारूफ से फ़ेल मजहूल बनाने के कायदे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और सब ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है। जुमले के शुरू वाले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें देखते हैं। शाहिद स्टडीज़ अ बुक इज़ स्टडीड बाय शाहिद। ये शाहिद स्टडी बुक पढ़ता है, ये एक्टिव वॉइस है और बुक उससे पढ़ी जाती है, ये पैसिव वॉइस हो गया।
सलमा बाइज अ पेन, एक्टिव वॉइस अ पेन इज़ बॉट बाय सलमा। अगर फ़ेल मारूफ के सब्जेक्ट में किसी नाउन के बजाय प्रोनाउन हो तो फ़ेल मजहूल में यानी पैसिव में इस प्रोनाउन को दर्जल शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे आई जो है वो बाय मी में चेंज हो जाएगा, वी बाय अस में चेंज हो जाएगा, यू बाय यू में चेंज हो जाएगा, ही बाय हिम, शी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम, हु बाय देम, बाय होम। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, वी स्टडी बुक्स, द बुक्स आर स्टडीड बाय अस। इसी तरह अगर फ़ेल मारूफ में कोई ऑब्जेक्ट यानी मफूल कोई प्रोनाउन हो तो इसको फ़ेल मजहूल में दर्जिल शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस प्रोनाउन में मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, अस जो है वो ई में चेंज हो जाएगा, यू जो यू ही रहेगा, हिम जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, हर शी में कन्वर्ट हो जाएगा, इट देम दे में, होम में, मतलब वही वाले उल्टे हो जाएंगे सारे। जैसे शाहिद बेट्स में, वो मुझे बेटता है, आई एम बीटन बाय शाहिद हो जाएगा, यू टीच अस, वी आर टॉट बाय यू। नोट, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और चूँकि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, इस एतबार से सिर्फ 8 पैसिव वॉइस टेंसेस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस टेंस की तारीफ जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में किसी काम के किए जाने या होने की बात मालूम होती है इसे प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस टेंस कहा जाता है। इसकी अलामतें क्या हैं? इज़, एम, आर। इज़ जो है वो ही उसी तरह ही होगा, इसमें ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, आर, यू, वी, दे के साथ और एम, आई के साथ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम ही होता है, बस वर्क हेल्पिंग वर्क का आ जाता है और साथ बाय यूज होता है। और लेटर इज़ रिटन बाय मी, इसको आसान पहचान करने का तरीका ये है कि फेल प्रेजेंट डेफिनेट में आई राइट अ लेटर होता है और पैसिव में अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मतलब जो नेक्स्ट वर्ब आएगी वो उसमें यूज़ हो जाएगी। इनडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, लेकिन जबकि प्रेजेंट इनडेफिनेट पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है कंटिन्यूस वाली। अब जैसे अगर द बॉयज़ आर बीटन बाय मी, अब आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस, तो फिर कंटिन्यूस में कौन सी यूज़ होगी? इसके रूल सारे सेम ही है, सिर्फ वर्क हेल्पिंग वर्क आता है और इसमें इज़ के साथ बीइंग लगा देते हैं, मतलब पहले इज़ लगेगा, पैसिव के इंडेफिनेट में इज़ लगेगा, उसके बाद इज़ बीइंग लगेगा और फिर थर्ड में इज़ बीइंग लग जाएगा। बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है। इज़ बीइंग मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा तो इज़ बीइंग लग जाएगा, यू, दे, वी, आर के साथ आर बीइंग और एम बीइंग लग जाएगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, तो इससे पता चलेगा अगर उर्दू नहीं भी लिखी हुई तो जहाँ पर भी बीइंग लगेगा तो उससे आपको समझ आना चाहिए कि ये कंटिन्यूस का जुमला है। इसी तरह अगर बीन होगा तो फिर वो परफेक्ट का जुमला होगा, ये आप खुद पढ़िए। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव में सेम उसी तरह ही रोल होंगे, अलामात उसके वही होंगे जो उर्दू वाले की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी वही है, लेकिन हैज़ के साथ बीन होता है और हैव के साथ बीन होता है। जैसे ही हैज़ बीन बिटन बाय मी, ही हैज़ नॉट बीन बिटन बाय मी, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगा। पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस टेंस, पास्ट इंडेफिनेट में भी सेम रूल है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क होता है। हेल्पिंग वर्ब में आपका आता है आई वॉज बिटन बाय यू, वाज यूज़ होता है इसमें ना, जबकि पास्ट इंडेफिनेट में एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं और तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, वाज यूज़ नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन पैसिव में वाज यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जो कि कंटिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बीइंग चेंज हो जाता है और वाज के साथ बीइंग लगता है, वर्ब के साथ बीइंग लगता है। अगर इज़ बीइंग हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा। इसी तरह अगर वाज बीइंग है तो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है, और अगर वर्ब बीइंग हो तो वो प्लूरल के लिए पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में भी सेम रूल यूज़ होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, हैड बीन यूज़ होता है और उसमें बाकी भैया आई हैड बीन बीटन बाय यू, मैं तुमसे बीटा जा चुका था। और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी सेम यूज़ होता है, शैल बी आई और वी के साथ शैल भी यूज़ होता है और ही, शी, इट के साथ विल भी यूज़ होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब बी यूज़ होता है, शैल बी बीटन बाय यू। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसमें अगर कंटिन्यूस में फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब शैल यूज़ होता है, लेकिन पैसिव के इंडेफिनेट में शैल बी यूज़ होगा।
सेम इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव होता है, तो शैल हैव बीन यूज़ होगा, इसमें विल हैव बीन यूज़ होगा। अच्छा जी, आगे है इम्पेरेटिव सेंटेंस। बस 50 हो गया, हाफ हो गया मेरा ख्याल, इतना काफ़ी है, बाकी इसका पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़। आगे 50 चैप्टर्स और हैं।